بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم آپ پڑھیں قرآن آپ پڑھیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامل عمران قادری کی جانب سے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جادو اور روحانی علوم کے بارے میں آپ کو بنیادی بات بتائی کہ جادو اور روحانی علوم میں کیا فرق ہے، تو دوستو آج ہم آپ کو جادو کی جو ہے ایک قسم بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی اسی طرح وقتاً فوقتاً مختلف اقسام کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آج جو ہم جس قسم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مسان کا جادو۔ مسان دراصل اس جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں غیر مسلم لوگ، اہل ہنود یا پارسی لوگ اپنے مردوں کو جو ہے جلاتے ہیں، تو مسان اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں سے مرگھٹ بھی کہتے ہیں، مردہ گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر جو سفلی عامل ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر اپنے عملیات کرتے ہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ مردہ لوگوں کے ہمزاد بکثرت پائے جاتے ہیں، بدروہیں بکثرت پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں ویرانہ ہوتا ہے، بد جنات اکثر یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں اکثر دو تین قسم کے جادو ہوتے ہیں۔ ایک ایسا جادو ہوتا ہے کہ سفلی عامل جو ہے وہاں سے جو ہے وہ چتا کی راکھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اور اس پہ پڑھائی کر کے وہ جس مردے کی چتا گرا کے اس مردے کا ہمزاد ایکٹیو کرتے ہیں پڑھائی کے زور پہ، اور پھر اس راکھ کو جو ہے وہ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی بھی طریقے سے کھلا پلا دیتے ہیں۔ تو مطلوبہ شخص جو ہے اگر یہ عمل تذکیر کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہمزاد حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جس کے لیے جادو کیا گیا ہے، یعنی جو طالب ہے، اس کے عشق کے اندر پاگل ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی کو بیمار کرنا، تو اس پہ مسان چلایا جاتا ہے۔ مسان چلانا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور پھر کھانے پینے کے بعد وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ کھلایا جائے اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی کوئی ہڈی توڑ رہا ہے، کوئی اس کو سوئیاں چبا رہا ہے، اس کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا اٹیک اس کے جگر اور معدے پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو معدے میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، خاص طور پہ بائیں کندھے پہ زیادہ درد ہوتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، چڑچڑی طبیعت رہتی ہے، دوائیں اثر نہیں کرتی، کھانا پینا اثر نہیں کرتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی وٹامنس یا طاقت والی دوا اس پہ اثر نہیں کرتی، دن بدن مریض کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ مسان کا جادو چلایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے مسان کے جادو کا ہوتا ہے، جادوگر جو طریقہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مسان کی بدروہیں اپنے قابو کرنا، ان کو بھینٹیں چڑھانا اور ان کی چوکی بٹھانا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں عمل سے چوکی پلٹ جاتی ہے، یا فلاں شخص پہ چوکی بیٹھی ہوئی ہے، چوکی کا عمل ہے۔ تو چوکی دراصل یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا چوکیدار بٹھا دیا جاتا ہے جو چاروں طرف سے مطلوب کو گھیر لیتا ہے اور اس کے ہر قسم کے کاموں کی بندش کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی حفاظتی دعا ہوتی ہے پہنی ہوئی، کوئی تعویذ یا دھاگا ایسا پہنا ہوتا ہے مرشدین یا بزرگوں کی طرف سے ملا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پہ جادو اثر نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب چوکی بٹھا دی جاتی ہے تو پھر چوکی کیا ہوتا ہے کہ اس کے چاروں طرف گھیرا کر لیتی ہے۔ چوکی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بدرو ہوتی ہے، اس کے ساتھ کئی اور بدروؤں کا ٹولہ ہوتا ہے، اب وہ گھیرا کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اس کے کام بگاڑنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے مخالف بناتے ہیں، اس کی دشمنی خام خواہ کے دشمنی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں سے وہ چیزیں اثر ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کے جسم پہ تو وہ داخل نہیں ہو رہی ہیں، لیکن باہر رہ کر اس کو بہت شدید نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کی دواؤں میں سے اثر ختم کر دیتی ہیں،
उसके घर के रिज़्क को गुम करना शुरू कर देती हैं, तबाही बर्बादी घर में शुरू कर देती हैं, उसके साथ उठने बैठने वालों को तकलीफ़ें देना शुरू कर देती हैं, उनके दिमागों पे हावी होकर उसके खिलाफ भड़काना शुरू हो जाती हैं, मुखालफत पैदा हो जाती है, नौकरी से ऐसा बंदा निकल जाता है, कारोबार बंद हो जाता है, रोज़गार रिज़्क में, यानी इसके जिस्म से बाहर के जो भी मामलात हैं उन सबको ख़राब करने के लिए चौकी बिठाई जाती है। इसको कहते हैं चौकी बिठाना। तो मेन यही दो किस्म के मसान के अमल होते हैं। तो दोस्तों, अब मसान हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि बुखल इतना है कि अव्वल तो साहिब इल्म लोग ना होने के बराबर हैं, और अगर कोई साहिब इल्म है भी तो वो ये बातें बताता नहीं, जबकि अहले हनूत के अंदर वो लोगों ने इतनी तहकीक की है कि वो लोग तो मसान की बदरुओं के नाम तक जानते हैं कि मसान में इस किस्म की बदरुएं होती हैं, उनकी ऐसे तस्कीर होती है और इस तरीके से जो है उनसे काम लिया जाता है। तो हम लोग लकीर के ही फ़कीर हैं, और एक तो आमलीन लोगों में मादरत के साथ तकब्बुर बहुत होता है, बुखल बहुत होता है। तो बुखल नहीं होना चाहिए, हमें अपने लोगों को इल्म पहुंचाना चाहिए, मालूमात देनी चाहिए ताकि हमारे लोग अपना दिफा कर सकें। हालत तो यह है कि नाम के मुसलमान हैं और सिफली इल्म कर रहे हैं, काला इल्म कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत हमारे पास कई आते, अक्सरियत आती है ऐसी जो नाजायज काम के लिए आते हैं, हर चीज देने को तैयार होते हैं कि हम हर चीज देने को तैयार हैं, हमारा ये नाजायज काम है, ये करके दो। अफसोस की बात है, दिल खुदा की कसम रोता है ऐसे लोगों की बातें सुन के कि ये कैसे मुसलमान है कि इनका कुरान पे ईमान नहीं है और ये शैतानी कामों के अंदर शैतान की मदद लेने को तैयार हैं अपनी अना की खातिर। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के पेश नज़र हमने सिलसिला शुरू किया कि लोगों को मालूमात दे, खुल के बताएं बगैर किसी बुखल के। तो दोस्तों, मसान का जादू तोड़ने के लिए इस्लाम में, हमारे जो रूहानी उलूम में, अमलियात में हांडी का अमल होता है, जो मरीज के सर पे से हांडी वारी जाती है, जिस पूरे जिस्म से फेरी जाती है, फिर हांडी को कहीं दफन कर दिया जाता है एक मसान की काट का, ये इस तरह का भी अमल होता है। उसके अलावा जो है पिलाने के तावीज़ात वगैरह दिए जाते हैं। मसान का जादू सबसे खतरनाक जादू है, क्योंकि इसमें सबसे खतरनाक वो है जिसके अंदर जो है मरीज को खिलाया पिलाया गया हो, क्योंकि वो जो है मरे हुए लोगों की चिता की राख होती है, उसके अंदर वैसे भी जहरीले असरात होते हैं। तो ऐसे मरीज के लिए दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी होती है कि उसके मैदे का इलाज किया जाए, किसी अच्छे मौलिद से, हकीम से उसके मैदे का इलाज भी कराया जाए साथ साथ। ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता है। उसके अलावा दूसरा जो चौकी बिठाई हुई है वो भी बहुत खतरनाक है, इस वजह से कि उसमें एक बदरू नहीं होती है, उसमें उसके साथ उसका पूरा टोला होता है। और इनमें अक्सर ऐसी बदरुएं होती हैं, ऐसी जैसे लूना चिमारी, मंगला चिमारी, आपने ये नाम सुने होंगे। काली हो गई, महाकाल की चौकी हो गई, ठकुराइन की चौकी हो गई, बहुत सी ऐसी चौकियां मैं आपको आगे आगे मालूमात दूंगा। गूंगी मसानी हो गई, ऐसी ऐसी बदरुएं हैं जो अपनी पूजा करवाती हैं। उनके पीछे हजारों और बदरुएं होती हैं। ये असल में ये जादूगरों की, जादूगरनियों की हमजाद होते हैं जो जादू करना भी जानते हैं। जब इनकी चौकी बिठाई जाती है तो बहुत मसला हो जाता है आमिल के लिए। आमिल को भी इनसे मुकाबला करना पड़ता है, हमलावर होती है। अपने अक्सर देखा होगा आमिल अपने भी सदकात मांगते हैं कि भाई हमें बकरा लेकर दो, हमें मुर्गी लेकर दो। तो ऐसे मामलों में देना पड़ता है भाई। आमिल के भी बीवी बच्चे आमिल के ऊपर भी अटैक होते हैं, उनको भी अपने सदकात निकालने पड़ते हैं। लोग बोलते हैं बस ये फूंक मारे हम सही हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई मेरे। अगर कोई ऐसा होता भी है तो वो आर्जी होता है, मुस्तकिल छुटकारे के लिए खर्च करना पड़ता है। तो लोग डॉक्टरों के पास तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं मिलता, फिर भी डॉक्टर को कुछ नहीं कहते। आमिल अगर 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार मांग ले तो लोग चीखना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो पैसे ले रहा है। और भाई पैसे होते हैं, अपने सदकात भी देने पड़ते हैं उसे। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत खतरनाक जो है वो एक जादू होता है, और इसकी पलट के लिए आमिल को मुकाबला करना पड़ता है, आमिल को लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं एक आपको इसका हल बताता हूँ। आप खुदा न खास्ता घर में कोई ऐसी चीज़ महसूस करें कि आपको जो है तन्हाई में, अच्छा चौकी की मैं आपको निशानियाँ पहले बता दूँ। चौकी की निशानी ये होती है कि जिस पे चौकी बिठाई जाती है उसको तन्हाई में महसूस होता है उसके साथ साथ कोई है, कोई उसके साथ आके लेट गया है, कोई चल रहा है।
तन्हाई में उसे अंधेरे में साए नज़र आते हैं, और उसके अलावा उसे कुछ खौफ महसूस होता है। कभी ख्वाब में उसको अजीब अजीब किस्म की चीज़ें, कब्रिस्तान देखता है, वीरान टूटी हुई घर देखता है, पुराने खंडरात देखता है, ऐसी पुरानी यादगारें देखता है, कभी अजीब व गरीब शहर देखता है। उसके अलावा जिस पे चौकी बैठी हुई होती है वो सहमा सहमा सा रहता है। खास तौर पे इसकी निशानी यही कि उसे महसूस होता है उसके आगे पीछे कोई है। यहाँ उसे शक्लें नज़र आती हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी या स्याह स्याह सी या स्याह जिस्म नज़र आते हैं, तो चौकी ज़दा की निशानी होती है। अगर तो चौकी ज़दा को कोई तावीज़ या नक्श वगैरह कोई हिफाजत का ऐसा नहीं होता तो फिर चौकी ज़दा की बहुत बुरी हालत होती है। फिर उसका जिस्म भी जो है उसमें भी दर्द होता है, वो चीज़ें उसको मारती पीटती है। मारने पीटने की तो निशानी होती है कि उसके सर में दर्द रहता है, उसका मैदा ख़राब डिस्टर्ब रहता है। उसके अलावा जो है उसको ऐसा महसूस होता है मेरे जिस्म में सुइयाँ चुभ रही हैं, या मेरे सर में कोई हथौड़ियाँ ठोक रहा है, कोई कील ठोक रहा है। इस तरह की अजियतें तकलीफ़ें होती है। नींद उसकी उड़ जाती है। कई लोगों की भूख मर जाती, कई लोगों को लेटरीन में जो है पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है या खून की उल्टियाँ आती हैं। तो इस किस्म की शिकायत होती है। चेहरा ख़राब हो जाता है, चेहरे के ऊपर जो है वो सुर्ख रंग के दाने या काले स्याह दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है, या पीला जर्द पड़ जाता है, चेहरे पे हरा हरा रंग जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। ऐसा महसूस होता है इसको हेपेटाइटिस हो गया है। उसकी आंखें मुर्दार होती जाती हैं, आंखों की चमक गायब होती जाती है। तो चौकी जो होती है वो खिलाए हुए से भी ज़्यादा खतरनाक होती है उस सूरत में कि अगर उसका कोई हिफाजती तावीज़ नहीं है, या वो बंदा बेनमाजी है, या दीनदार नहीं है, वो बंदा आम दुनियादार सा है, तो फिर उसका तो डबल बेड़ा गर्क करती हैं चीज़ें। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन बलाओं से महफूज रखे। अब आते हैं इसके हल की तरफ। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात आप महसूस करें तो सबसे पहले काम करें, मरीज के सदकात दें, मुस्तकिल सदके देते रहें। कम से कम हफ्ते में 2 दिन सदका दें किसी जिंदा जानवर का। जिंदा मुर्गी का अल्लाह ने हैसियत दी है तो जिंदा बकरे का दें, वरना कम से कम बकरे की सिरी का सदका दें। मरीज के ऊपर से 7 दफ़ा मुर्गी जिंदा हो या बकरे की सिरी हो, सर पे से वारें 7 दफ़ा दाईं तरफ, 7 दफ़ा बाईं तरफ घुमाएं सर पे से, और किसी फ़कीर को दे दें। अगर फ़कीर को दे दें, अगर ज़िंदा मुर्गी है फ़कीर लेता है ठीक है दे दें उसे, या किसी मदरसे में दे दें। अगर बकरे की सिरी है कोई लेने को तैयार नहीं है तो कब्रिस्तान में फेंक दें या किसी वीरान जगह पे फेंक दें। इस नीयत से नहीं कि ये जिन भूत खा लें, इस नीयत से कि कीड़े मकोड़े भी अल्लाह की मखलूक हैं। आपने सुना होगा कि लोग पुराने दौर में भी जो है चींटियों को या मकोड़ों को अनाज और चीनी वगैरह डालते थे सदके की, या कबूतर को बाजरा डालते थे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। तो ऐसे कीड़े मकोड़े ये सब अल्लाह की मखलूक है, वो गोश्त खा जाएं, ये भी सदके की नीयत से। आप या किसी दरिया नहर में डाल दें ताकि मछलियाँ खा जाएं सदके की नीयत से, तो उसका ये है। बाकी अगर जिंदा मुर्गी है तो जिंदा मुर्गी किसी इंसान को ही देनी है, किसी को भी दे दें आप, उसे बता दें कि ये जो है सदके की है। और अगर आप बकरा देते हैं तो बकरे का सदका ऐसा है, मरीज के हाथ छुरी पे हाथ रखवा के छुरी फिरवाएं और उसके सदके की नीयत से बकरे का गोश्त अलग कराएं, उसकी हड्डियाँ, सिरी, पाए और खाल और अंदर की अलाइश ये अलग कराएं। गोश्त जो है वो गरीबों में बांट दें सदके की नीयत से। बाकी सारी अलाइश, हड्डियाँ वगैरह, चारों पाए और जो है वो सिरी जो है किसी बोरी वगैरह में डालकर आप किसी वीराने में या किसी कब्रिस्तान में दफन करवा दें, या किसी जंगल में शहर से बाहर दफन करवा दें, तो इंशाल्लाह जो है आप बहुत फ़र्क देखेंगे। सदका रद्द बलाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत फ़ज़ाइल सदके के बयान फरमाए। सदका अल्लाह ताला से तिजारत है। फरमाया तुम अगर तंग दस्त हो जाओ तो अल्लाह से कारोबार करो सदका देकर। तो सदके के नेमुल बदल बहुत है। जब आप मरीज का सदका देते तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से ज़्यादा उसको जो है खुशियाँ देता है और उसको सेहत देता है। इस ईमान के साथ सदका करें, ठीक है, इस ईमान के साथ सदका करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है घर के अंदर आयत करीमा का ख़त्म शरीफ कराएं। हर जुमेरात को कम से कम 7 जुमेरात तक 1.25 लाख आयत करीमा का ख़त्म कराएं। इससे उस मरीज को पास बिठा लें, मरीज खुद पढ़ सकता है तो वो खुद भी पढ़े। तो इस तरीके से मतलब जो है इंशाल्लाह इस तरह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा दुरूद नारिया है, दुरूद नारिया का ख़त्म कराएं 1.25 लाख आप हर जुमेरात को कराएं। घर में असर और मगरिब के दरमियान ही ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत पावरफुल टाइम होता है। मरीज को पास लिटा लें, अगर बैठ के खुद पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, ख़त्म में बैठ के पढ़े।
اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، آپ کی مشکلات دور کرے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی بہترین ویڈیوز معلومات لے کر آپ کے پاس